Hey everybody, this is the second episode of Failure Stories, and today we have our favorite guest Janvi Singh, who is a confidence coach and she's also a founder of Geeta Se Gyan. So, and she's a content creator and has a very huge following on Instagram as well as Twitter as well. So, Janvi, please tell something about yourself to our people. Thank you so much, Tanmay for inviting me. And hi, everyone. This is Janvi, and I'm a full-time content creator, also the founder of Geeta Se Gyan, which is a community organization to connect all of you through the Srimad Bhagavad Gita and the learnings of it, ताकि हम सब लोग सीख सके कि श्रीमद् भगवद गीता में क्या है. और मेरा content भी उसी से related है. Along with that, I do courses and trainings as a confidence coach, a communication coach, and a lot more things that are lined up. So yeah, thank you so much. Awesome. So, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस फेलियर स्टोरीज का मिशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं. तो मिशन ऑफ द फेलियर स्टोरी इज दैट आई वांट टू एनकरेज पीपल टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, लोगों को बहुत कुछ करना है. दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस, दे वांट टू स्टार्ट एज अ creator on Instagram, LinkedIn or whatever, but they are not starting because they are they have a inside fear that external fear and internal fears that I will fail and all. So we have to encourage people by telling our stories that we also failed and we bounced back from that failure, and now we are something today because we tried and we did not give up. So we have to encourage people to take calculated risk. And the core message of this failure stories is that we are not going to repeat our mistake. This is very important. जो मिस्टेक हम लोग आज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट मिस्टेक अगेन टुमारो, सो दैट विल वी विल ग्रो फास्ट. दिस इज द कोर मैसेज एंड आई यूज दिस कोर मैसेज in daily life. I practice to not to repeat mistakes in even chase or whatever things I do in my life, and that's very helpful. So ये है हमारा कोर मैसेज. सो पीपल, अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होगी because we are learning from other people's failure. So let's get started. Okay. So I would just say one thing here, that it's a great initiative actually, that a lot of people see the success, like the hi-fi side of the influencers or maybe the successful leaders and all, but they don't know what goes behind that and what goes behind the scenes. So that's really important to learn from those failures and actually to not repeat that mistake. So I have heard this one quote that regret and the mistakes that can be compounded. So it always gets compound, but failure is what here आप इससे सीख सकते हो. This will not compound. You can learn from here and get success in life. So that's important. Awesome. So let's get started. Janvi, okay, we have done who you are today. Now next is how you reach where you are today. So let people know that how you reach where you are today. Okay, so I think it's not about being highly successful, and everyone has a different success, like a parameter of success. सबके life में success का मतलब अलग होता है. So for me, I am on the path of it, but I can say कि जहाँ मैं पहले थी, what I was before this, like 2 years, 3 years back, I'm completely changed from that. So the parameter that I've break is really important. तो यहाँ पे when I was that underconfident kid who doesn't know what to do in life, who was completely aimless and clueless, so अभी उसको पता है that what to do in life. I'm still figuring out a lot of things, and everyone does, even in the 25, 30s, even 40s. Maybe लोग figure out करते हैं, and that's a process, and that's completely fine. But I would say that मैंने काफी कुछ change किया है throughout the journey, and I started very small, and the struggles are still there. आज भी उतना ही struggle है हर एक चीज में, especially when it comes to the content creation. I wake up at 3 a.m. to shoot each and every day. Because it happens, I live in a where I live here is it's on a roadside, so the noise has to be like very loud. So I used to wake up in the morning and shoot. So every day it's a struggle to do something, but important ये है कि आप उसको कैसे enjoy कर रहे हो. So I think I've changed a lot through books, through the learnings, through the mistakes. Definitely mistakes से बहुत कुछ सीखा है, बहुत बार fail भी हुई हूँ. I used to run a YouTube channel कुछ साल पहले, and it was an epic fail.
but it's okay. I learned from it. I've done blogging, I've done a lot of things, and वो बहुत सारी चीजों में failures थे, तो वहां से अभी कुछ ना कुछ सीखा है, and that's why I am like अभी I am doing well in life. अभी excel हो रहा है, business is also on the scale, the team is building up, so everything is going very well. So all of the things are here कि यहाँ पे point सिर्फ simple है that failures से ही सब कुछ सीखा है, and that was the very important part throughout the journey. So this is what I would say. Superb. So you used to wake up at 3 a.m. to record videos, and I that's still do. yeah. मेरा ऑफिस भी इमीडिएट रोड के साइड में, तो बहुत शोर होता है. मेरे यहाँ पे तो हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस वगैरह. सो व्हेन आई यूज्ड टू शूट माय कोर्सेज, आई आल्सो यूज्ड टू वेक अप एट 5. करना पड़ता है, you have to sacrifice something. Exactly. And even I am like by this week I'm shifting apart from my home, and I live there to shoot content. So this is also a sacrifice, because I'm a person like who doesn't want to live far from the family, and especially dad. I really love him, I admire him. Matlab, I definitely do it with mom as well, but daughters do have some special connection with dad, so I have to live far from him now. That's a very big sacrifice for me, at least. So I don't want to do that, but yeah, it's okay. You have to make the career out of it. So yeah, I'll do that. Awesome. So अब next है कि फैमिली का सपोर्ट किस तरह से था, because so many people they do not have that family support to do their business, to do what they want to do in life. So tell people about how your family support was. Abhi to family is very supportive, but every Indian household is like कि मतलब those who don't know that I have done my 12th and I'm not doing college. So this not doing college is a big thing in every Indian household. So that is a big thing, and that is a big step you have to take. So I'm not doing college. तो वो एक थोड़ा सा issue था, but they were like कि जब मैं 12th में थी, तो जब मैंने ये decide किया था कि I won't do college further after this, तो they were like okay, but ये इस साल कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हम तुम्हें अलाउ करें कि हाँ चलो कॉलेज नहीं भी करोगे तो यू विल मेक अ करियर आउट ऑफ कंटेंट क्रिएशन. सो 12th में बोर्ड्स के साथ साथ आई मैनेज टू डू लाइक टू लर्न ऑल द स्किल्स, टू रीड द बुक्स, टू मेक वीडियोस इन द होम. मतलब सब कुछ मैनेज करके बोर्ड्स के साथ साथ आई समहाउ मैनेज्ड इट, एंड वो एक साल में आई हैव समहाउ मोनेटाइज्ड द स्किल, आई हैव एक्सेल्ड इन द स्किल. तो उसके 12th होने के बाद दे अलाउड मी कि चलो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ. और अभी भी एक डेडलाइन है उन्होंने मुझे दिया है कि इस जून तक 2020 के जून तक यू हैव टू रीच ऑन दिस पैरामीटर, मतलब मेरे पेरेंट्स के हिसाब से. बट दे आर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी. अभी भी मैं शिफ्ट हो रही हूँ दूसरे घर में, तो मम्मा भी शिफ्ट होंगी वहां पे. शी विल लीव द हाउस, एंड दैट्स अ बिग थिंग फॉर एवरी इंडियन हाउसवाइफ टू लीव द होम फॉर द चिल्ड्रंस करियर. तो वो एक बड़ा सैक्रिफाइस होता है. तो इफ दे आर डूइंग दैट आई रियली अप्रिशिएट, एंड एवरीवन इन द हाउस इज वेरी सपोर्टिव नाउ. बट इसमें दोनों का ही मतलब रोल था. पेरेंट्स का भी उतना ही रोल था, मेरा भी उतना ही रोल था, क्योंकि 12th के साथ साथ मैंने वो करके दिखाया और उन्होंने प्रूफ किया कि हाँ चलो वी कैन सपोर्ट यू. सो इट्स अ इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स. तो या दे आर सपोर्टिव नाउ. वाओ, मम्मी एंड पापा सो सपोर्टिव. अगर सब इतने सपोर्टिव हो जाए तो कितना सही. बहुत लोगों को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता और वो लोग फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट यू हैव दैट फैमिली सपोर्ट, एंड कितनी अच्छी बात है. वो अच्छी बात है, बट आई वुड से टू दोस पीपल, अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं भी है तो ट्राई टू वर्क इवन मोर हार्डर. वो तुम्हारा हार्ड वर्क देख के तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो इफ यू वुड वर्क हार्ड टू दैट लिमिट, थोड़ा सा अपने लिमिट से बाहर जाके, कंफर्ट जोन से बाहर जाके अगर आप काम करोगे तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे ही करेंगे. देखो कभी भी इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है, तुम कोई भी अच्छा काम करो उससे पैसे आने चाहिए, तुम अच्छे एसोसिएशन में होने चाहिए, अच्छी कम्युनिटी होनी चाहिए, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. अब वो चाहे बिजनेस हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो. तो इफ यू विल वर्क हार्ड एट दैट पॉइंट, तो वो भी आपको अलाउ करेंगे टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ. एग्जैक्टली. मुझे भी स्टार्टिंग में, अभी भी मेरा फैमिली सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, बट मेरी मम्मी और मेरे पापा कर रहे हैं सपोर्ट कि समथिंग इज वर्किंग एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग, रिजल्ट दिख रहे हैं उन लोगों को, तो वो लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं और सब कुछ, हाँ फिर कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, फिर कोई सपोर्ट मिलना भी नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग देंगे हमारी ऑडियंस को छोटा सा टीजर कि what was your struggle. So tell only points and how you overcome. Tell only points and we will go deeper inside in next 5 minutes. All right. So should I have to start, right? Yeah. Okay.
So there are a lot of struggles being a content creator. As in full-time content creator, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने होते हैं, जिसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि content creator so you have to just make the video. There's a lot more process to write the scripts, to make a unique content. And जब मैं 11th या 12th में थी, when I was just getting started and I was figuring out कि क्या करना है, तो उस टाइम पे मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था. It was zero and I was introvert. तो मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ. आई डोंट से दैट आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट अभी, बट आई वाज सुपर अंडर कॉन्फिडेंट. तो उस फेज से कॉन्फिडेंट में आना इज अ ह्यूज स्ट्रगल. सेकेंड थिंग इज कि अब जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी से बात करने में, तो कैमरे के सामने बात करना इज इवन मोर डिफिकल्ट. सो टू प्रैक्टिस दैट आई हैव गिवन माई सेल्फ 3 months की 3 महीने मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया था टू मेक वीडियोज एंड टू नॉट पोस्ट इट एनीवेयर. So to record those videos and to post it on social media is a struggle because आप judgments के बारे में सोचते हो, opinions के बारे में सोचते हो, लोग क्या कहेंगे. This is the biggest factor you think. So you have to overcome all of these things. So second thing was to wake up at 3 a.m. each and every day. And सुबह उठना is the ugliest frog for me. क्योंकि मतलब I am a morning person, but सुबह 3 बजे उठना is not a morning person. The crazy things, right? Wake up at 6:30, that can be a morning person. So that struggle was huge for me to wake up each and every day for 3 a.m. Wow. So this has been the struggles. And how you overcome those struggles? Just give a short insight and we'll go deeper inside. I would just say the most difficult thing is to wake up at 3 a.m. Now अभी मुझे कोई कितना भी कह के ना कुछ उठा ले, मैं नहीं उठूंगी. बट इफ द अलार्म विल रिंग, और मे बी अगर मेरे साथ ना डैड भी उठते हैं रोज सुबह 3 बजे मेरे लिए. ही इज सो सपोर्टिव एट दिस थिंग. मम्मा भी उठती है कभी कभी, बट डैड भी उठते हैं हमेशा. ही मेक्स कॉफी फॉर मी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही डू इन द मॉर्निंग. तो वो मुझे उठाते हैं, वो मुझे कितनी बार उठा ले, वो मैं नहीं उठूंगी. बट अगर वो मुझे कहेंगे जानवी उठो वीडियो बनाना है, आई विल वेक अप लाइक दिस. सो दिस हैज बीन a motivation to wake up कि वीडियो बनाना है तो मैं उठ जाऊंगी, नहीं तो तुम कितनी कोशिश कर लो मैं नहीं उठने वाली. दस इंस्पिरेशन है. हाँ, तो मैंने उनको बोल रखा था कि यार मुझे उठाना, मुझे याद दिला दिया करो मुझे वीडियोस बनाने होते हैं. सो दिस इज हाउ आई हैव ओवरकम. एंड फिर धीरे धीरे आदत डाली कि मुझे पता ही है कि 3 बजे करना ही करना है. एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन दिन में या रात में शूट करने का. तो फिर अलार्म लगा के उठना ही होता था. फिर कितनी आलस आती हो, कितना ही मन नहीं करता हो, बट यू हैव टू. There's no choice, right? There's no choice because you have to reach at that success. You want to reach at that point. So this has been the struggle and how I overcome it. Awesome. So बहुत ज़्यादा deep struggle है. 3 बजे उठना मतलब wow. For me, it's a struggle. नहीं 3 बजे मेरा खुद का अलार्म बजता है रोज 5 बजे, बट मैं उठता हूँ 6:30 के आसपास. So hard, बहुत hard है. It's hard. Right. So, and even to speak in front of camera, that's even hard. So that comes from practice. So I've practiced it throughout the time, to read the books, to practice it. 3 महीने मैंने वीडियो शूट करके देखे, तब जाके कॉन्फिडेंस आया कि now I can post videos on social media. और अभी भी अगर आप पहला वीडियो जाके देखोगे तो उस वीडियो में और आज की वीडियो में बहुत फर्क है. पहला वीडियो तो इपिक रहता है. So this comes from practice. मेरे बहुत सारे दोस्त स्ट्रगल कर रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए. दे आर थिंकिंग अबाउट इवन एक्सटर्नल फियर्स, व्हाट अदर पीपल विल से, ये क्या बोलेगा, वो क्या कहेगा, दैट उन लोगों को ये वीडियो दिखाना होगा. सो दैट्स व्हाई वी आर ओके. लेट्स देखो, हर किसी की चॉइस अलग होती है. अगर आपको कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं अच्छा लगता है, किसी का वो तो फेवरेट होगा, है ना. तो मतलब ये बहुत कॉमन चीज है. किसी को कपिल शर्मा पसंद है तो किसी को तन्मय भट्ट पसंद है, बट दैट डजंट मीन कि उनमें से कोई खराब है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. किसी को सचिन पसंद है, किसी को धोनी, तो दोनों में से कोई खराब नहीं है. दे आर द बेस्ट प्लेयर. तो वो किसी का फेवरेट है, किसी को नहीं पसंद है. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू मेक वीडियोस. और ये हर जगह अप्लाई होता है. सुपर. ये बहुत सही बात कही. We cannot expect to, everybody cannot love us, and we cannot love everybody even. Yes, exactly. So let's get deeper inside that. How you started your journey? What was the first step when you started this journey? Whatever it is. So let's go deeper inside that.
Okay, so being a content creator or being in any field, the one skill that you need is knowledge. So I started from that point. तो जैसे बहुत लोग पूछते हैं पैसे कैसे बनाने, इस फील्ड में स्कोप क्या है, पैसे कैसे बनेंगे, but before that, going to that level, learn the skill कि ये skill कैसे सीखते हैं, and this is the mindset that you need to adopt कि पैसे बनाने से पहले, उस स्किल पे टॉप पे पहुंचने से पहले लर्न दैट स्किल. तो आई स्टार्टेड लर्निंग द स्किल्स. तो मुझे पता नहीं था कि व्हाट आई हैव टू डू, बट आई जस्ट गॉट इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स की देखने के लिए कि व्हाट आई कैन डू इन दिस फील्ड. तो वही बात होती है एक्सप्लोर करने की. तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की. आई ट्राइड यूट्यूब, ब्लॉगिंग, I tried marketing, I tried website designing and a lot more things. Whatever you can think in the digital marketing field, I have done that and I've learned those skills. वो अलग बात है कि मैंने उसमें एक्सेल नहीं किया, आई फेल्ड इन दैट, वो एक अलग जर्नी है. बट डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड फील्ड. द मार्केटिंग एंड सेल्स इटसेल्फ बहुत वाइड फील्ड है, उसमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स है. आपको किस में इंटरेस्ट है, यू विल गेट इनटू दैट फील्ड. सो व्हेन आई एक्सप्लोर सेल्स, मार्केटिंग एंड मुझे समझ में आ गया पर्सनल ब्रांडिंग इज माय इंटरेस्ट. उसमें मैंने और एक्सेल किया. आई हैव डन द कोर्सेज, आई हैव लाइक रेड बुक्स ऑफ इट. एंड किसी भी फील्ड में से जाने से पहले, मतलब ये मैंने किसी मेंटोर से सुना था कि जिस भी फील्ड में आपको एक्सेल करना है उसके पहले तो 150-200 किताबें पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस फील्ड में है क्या. सो दैट्स व्हाट आई हैव डन व्हेन आई गॉट इनटू कम्युनिकेशन मार्केटिंग. आई हैव रेड बुक्स, और ये आइडिया भी मुझे बुक्स से ही मिला है. मेरी 80% लाइफ बुक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. तो जो भी मैंने सीखा है बुक से सीखा है. और ये आइडिया भी रिच डैड पुअर डैड में से मिला था. व्हेन आई स्टडीड की फॉरेन में, स्पेशली यूरोप में, लोग 14-15 साल के लोग में, मतलब एज में डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. सो आई थॉट कि व्हाई नॉट अस, व्हाई दिस इंडियन कांसेप्ट इज देयर कि 24 तक, तब तक तुम नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें फीड करते रहेंगे. दिस इज द कांसेप्ट इज फाइन, दैट्स नॉट एन इश्यू. बट अगर आप कर सकते हो देन व्हाई नॉट. पीपल आर लाइक इन द एज ऑफ 13-14, अगर आप ट्विटर पे देखोगे, they are talking about NFTs, cryptocurrencies, and I think where we are, हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, and they are excelling at this level. तो वो बहुत अच्छी चीज है. अर्ली स्टार्ट करना इज अ वेरी गुड थिंग. सो आई स्टार्टेड लर्निंग द स्किल्स, फोकसिंग ऑन द स्किल्स, नॉलेज एक्वायर किया, एंड फिर उसमें करके एक्सेल किया. सो टू लाइक एक्सेल इन एनी फील्ड, take that knowledge and acquire the skills. So that's what I have done, and running a business and doing content creation. This is all how it started. Wow, huge inspiration, huge inspiration. जब मैं 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में था, तो सिर्फ मुझे पता है मैं क्या कर रहा था. so it's very good, you know, to start early. हम लोग जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, अब मुझे लग रहा है कि you know I should have started, you know, 5 years back, 6 years back. Exactly. But अब तुम्हारे एज के जो भी किड्स है, जो भी बच्चे हैं, तुम लोगों को देखकर उन लोगों में एक इंस्पिरेशन आएगा. If she is doing, then I should do. So it's very huge thing, and you are a very good inspiration for people. You know, even I started reading books twice, as you know, 20 दिन में मैंने 3 books complete कर दी, because I saw your status that you were reading books and all and all. So surrounding ourselves with, you know, all these, you know, people, like-minded people is very important. So great. So अब बात करते हैं where you failed and how you failed. So how you failed in this all journey. Tell everything about, you know, your journey, your failure. Okay, so the main life motto is obviously content creation, because this is the major profession I am leading in, right? So ये excel हो रहा है यहाँ पे करिया, but I have failed a lot of times in the content creation. So when I started back in, when I was like 14-15 years old, maybe I'm like currently 18. तो आज से 4-5 साल, 3-4 साल पहले I started a YouTube channel of dance, which was an epic fail. And उस टाइम मैंने बड़े सीरियसली YouTube शुरू किया था. It was not like I just started कि हाँ करना है तो कर लिया. I made a setup of it. I researched a lot of things. तो उसके एक साल पहले ना मैंने काफी रिसर्च किया था on YouTube, on how to do YouTube. तो वो एक साल का रिसर्च लगा के 1 साल तक मैंने YouTube किया था, बट उतना अच्छा नहीं चला जितना मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा चलेगा, बट उतना अच्छा नहीं चला, बट इट्स ओके. तो वो 1 साल मैंने बोर्ड्स, हाँ उस टाइम मेरा बोर्ड्स चल रहे थे, तो आई मैनेज इट विद माय बोर्ड्स. और हाँ, तो बोर्ड्स के साथ साथ मैंने उसको किया था. और बोर्ड्स देने के बाद एक दिन पहले शूट करना, एडिट करना, पढ़ाई भी करना, बोर्ड्स दे के आना, वो सब मैंने किया था. वो सब मैंने किया था. एंड मम्मा यूज्ड टू शूट द वीडियोस, वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद है. उन्होंने भी बहुत मेहनत लगाई थी उसके पीछे, और काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी भी लगा था उसमें. तो
वो सब ना दैट वाज अ वेरी एपिक फेल, बट ठीक है, उसके एक्सपीरियंसेस मुझे आज भी काम आते हैं. इफ आई एम डूइंग यूट्यूब टुडे तो उसके एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत काम आते हैं कि ये चीज ऐसे तो नहीं करनी है. तो मुझे पता चल गया वो एक साल में हर एक दिन की कहाँ क्या नहीं करना है. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. तो वो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई किया. ट्राइड ब्लॉगिंग, आई ट्राइड डिजिटल मार्केटिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये सारी चीजों में मैंने एक्सप्लोर किया. तो व्हाट आई हैव लर्नड इज कि देखो, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहाँ फेल हो रहे हो और कहाँ सक्सीड हो सकते हो. वो भी उसी लाइन में मिलेगा. जहां पे एक्सप्लोर करोगे, जहां फेल होगे तो तुम्हें समझ आएगा यहाँ फेल होंगे तो दूसरी जगह सक्सेस मिल सकती है जहां तुम्हारा इंटरेस्ट होगा. सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन द जर्नी कि भले ही इस चीज में फेल हो गए लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस आज भी दूसरे फील्ड में जरूर काम आते हैं. सो दिस हैज बीन द जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन. और इसके पहले भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया. सोशल मीडिया पे हेट भी मिला है एंड जितना प्यार मिलता है उतना हेट भी मिलता है. आई स्टार्टेड विथ मार्केटिंग वीडियोस, तो उसमें मुझे काफी हेट मिला था एंड आई वाज थिंकिंग आई वुड एक्सेल इन दिस, बट उसमें मुझे काफी हेट मिला एंड आई स्टॉप्ड वर्किंग दैट. फिर 6 महीने मैंने लगा के सीखा कि व्हाट आई कैन डू ऑन सोशल मीडिया. वो 6 महीने लग गए थे मुझे अपनी नीश आइडेंटिफाई करने में कि व्हाट आई कैन डू ऑन बहुत सोशल टाइम लगता है. मीडिया. सही. बहुत टाइम लगता है टू आइडेंटिफाई नीश, क्योंकि आपके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं. नाउ टू क्लैरिफाई वन कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह आप इसको कर सकते हो, उसे आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगता है. So I took 6 months and I learned a lot of things. उस टाइम पे I did a lot of courses, YouTube पे, books से बहुत कुछ सीखा और समझ में आया कि I can excel in self growth, personal growth. और उसी टाइम पे जब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था तो आई थिंक कि आपके माइंड को एक मीडियम चाहिए होता है टू कन्वे द नॉलेज. आप इतनी नॉलेज प्रोसेस तो कर रहे हो माइंड में, बट ये कहीं मीडियम भी चाहिए होता है ताकि ये पास ऑन हो कहीं पे. तो अब घर में आप किसको कितना ही बता लोगे, आपने जितना पढ़ा इतना टाइम किसी के पास है नहीं. So I thought let's get started on social media with this thing. So abhi I am excelling in that content. So this has been the journey. That's a very good initiative. गीता ज्ञान बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और कोई नहीं कर रहा ये. सो यू आर डूइंग ए वेरी यूनिक थिंग एंड ये तो बंद मत करना बस. सही जो कर रहे हो एकदम सही. अब Thank you, sir. ग्रेट क्वेश्चन है, why you failed wherever you failed that YouTube channel in your journey, why you failed, why do you think that you failed? This is the question. Okay, so I think there was a lack of planning firstly, and secondly शायद मेरा aim उतना उस time ना clear नहीं था. So when I was doing YouTubing or maybe blogging or maybe anything else, digital marketing, I was doing it for the fame and money भी उतना important नहीं था उस time पे. But I was not so mature कि मैं उतने बारे में सोचूं, क्योंकि money was the secondary factor after all. But I was in that मतलब जिसको कहेंगे ना एक जाल था वो fame का. तो मैं उसमें ना फंस गई थी कि आई वांट दैट फेम, आई वांट दैट पॉपुलैरिटी. ठीक है, रिकॉग्निशन इज डिफरेंट थिंग, फेम इज डिफरेंट थिंग. तो वो जो फेम का जाल होता है ना वो बहुत बुरा होता है. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम भगवत गीता एज वेल कि वो नहीं होना चाहिए लाइफ में. मतलब यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ द रिकॉग्निशन एंड जो भी आप काम करो उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, बट फेम इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. और वो एक माया है, एक मोह है. तो that should not be in your life because वो आपको लाइफ में कहीं सही डायरेक्शन पे नहीं ले जाएगी. So I was in that मतलब जब वो मतलब फेम के इसमें मैं क्लाउड में थी. So that was wrong. There was a lack of knowledge as well क्योंकि उस टाइम पे इतना पता ही नहीं था and how to do. इतने कंटेंट क्रिएटर्स उस टाइम पे थे भी नहीं जितने आज हैं. ये कंटेंट क्रिएशन का तो मतलब बूम आया ना, अभी 2-3 सालों में आया है पैंडेमिक के बाद. हाँ, पैंडेमिक के बाद तो खासकर इतने लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए तो उसके बाद ज्यादा आया है ये. बट इसके पहले इतना नहीं था कि इतने कंटेंट क्रिएटर्स मतलब थे, बट बहुत कम थे और वो भी अब उस टाइम एक्सेल कर ही रहे थे. एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड. तो शायद उस टाइम मतलब अगर बहुत ही अच्छे से किया होता तो आज भी आई हैव मतलब आज आई हैव बीन ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेज. बट दैट्स फाइन, इट्स ओके. अभी आई एम इन ऑन द राइट डायरेक्शन, तो वो ठीक है. तो मुझे लगता है दैट वाज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल्स, प्लानिंग एंड अ लॉट मोर थिंग्स. तो उतनी एज भी नहीं थी कि मैं उतना समझ पाऊं कि क्या करना है क्या नहीं करना. उतनी समझ ही नहीं थी एक्चुअली में. तो दैट हैज बीन अ रीजन. और उसके बाद भी आई हैव बीन वेरी कंफ्यूज्ड कि कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं. इन्फ्लुएंस में आके वो ये कर रहा है तो मैं भी कर लेती हूँ, वो वहां जा रहा है तो मैं भी कर लेती हूँ, शायद मेरे से हो जाएगा. तो मैंने ना बहुत ऐसा करके बड़ी मल्टीपल चीजें ट्राई की और वो इन्फ्लुएंस में उसके बाद फिर क्लैरिटी मिली कि एक्चुअली में क्या करना है. So this has been the journey. Wow.
trying to do everything, you know, बहुत लोगों के साथ होता है कि मुझे ये करना है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, I want to do this, but जो सही है, you know, एक्सप्लोर तो सब कुछ करो, लेकिन वही करो, वो आइडेंटिफाई करो, तो वो ठीक है, वो प्रोसेस था, तो आई एंजॉयड दैट फेज एज वेल, तो ठीक है। सबके लाइफ में होता है, मेरे लाइफ में भी हुआ था। ओके, सो अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? What was the biggest challenge and what is the biggest challenge right now as well? So we will talk about that. At that time the challenge was to manage it with boards, और उस टाइम मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था, ऑनेस्टली नहीं था। मैं 8th क्लास से पीछे पड़ी थी यूट्यूब चैनल के चलाने के लिए, और मुझे 10th में कमीशन मिली थी। तो दैट 2 years आई ऑलरेडी लाइक मैंने बहुत जिद किया था घर पे कि मुझे करना है, और उन्होंने बोला बोर्ड्स के साथ मैनेज करना पड़ेगा। तो अब इंडियन फैमिलीज में बोर्ड्स का तो वैसे ही बड़ा इशू होता है, बोर्ड्स क्लियर करना तो लाइक वो तो ऐसे ना सबसे बड़ा गोल हो जाता है उस टाइम का, और 10th बोर्ड्स तो स्पेशली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन माइलस्टोन। तो बोर्ड्स के साथ साथ यूट्यूब मैनेज करना वाज अ ह्यूज थिंग, और पढ़ाई में मैं वैसे ही उतनी अच्छी कभी रही नहीं है, वो एवरेज स्टूडेंट, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो उतनी तो नहीं थी, मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि तुमको फर्स्ट आना है, टॉप 10 आना है, बस ये था कि अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पास हो जाओ, बस ऐसा था। और मेरी मैथ्स बड़ी वीक थी, सो आई जस्ट पास, ऑलवेज जस्ट पास्ड इन मैथ्स, तो वो हमेशा एक इशू रहा है। तो उसको साथ साथ मैनेज करना यूट्यूब के साथ साथ में, और जबकि आपको कोई नॉलेज ना हो उस टाइम पे, कोई गाइडेंस नहीं, कोई मेंटरशिप नहीं कि हाँ देखो ऐसे कर लो, यहाँ कर लो, वो कर लो, कि यूट्यूब ऐसे रन होता है, तो कुछ भी आइडिया नहीं था। जो था यूट्यूब का ज्ञान यूट्यूब से ही लिया गया था, ऐसा था। जो यूट्यूब पे मतलब करना है वो यूट्यूब से ही सीखो, तो फिर वो सब सीख के करना, और खुद ही एडिटिंग करना। ऐसा तो नहीं था कि मैंने टीम भी बना रखी हो कि कोई एडिट कर दे, कोई वीडियो शूट कर दे, सब खुद ही करना पड़ता है स्टार्टिंग में, सब अकेले करना। अभी टीम है तो अभी मैनेज हो जाता है, बट उस टाइम पे तो सब अकेले किया था। और अभी भी टीम तो अभी बिल्ड हुई है, बट टू शूट एट 3 AM एंड टू लिव लाइक अपार्ट फ्रॉम द होम, दैट विल बी अ ह्यूज स्ट्रगल। तो वो स्ट्रगल तो अभी आने वाला है, तो वो भी सब तो शुरू होगा, क्योंकि देखो वो लोग, मतलब मैं और मम्मा अगर वहां पे रहेंगे तो दैट विल बी अ चैलेंज, क्योंकि अभी तक यहाँ रहते हैं तो पापा सब कुछ कर देते हैं, तो हमें हमारे ऊपर ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमको ये भी करना है, वो सामान भी लेके आना है, वो सारी चीजें हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब पापा कर लेते हैं। बट अकेले रहना साथ में मम्मा और मैं, मतलब अकेले ही हुए यार हम लोग कभी रहे नहीं अकेले, पापा से अलग, वहाँ फैमिली से अलग, तो हमारे लिए अकेले रहना ही हुआ है। तो वो सब मैनेज करना, और जो घर लिया भी है वो बहुत दूर मिला है, मैं 1 महीने से घर ढूंढ रही हूँ, और मेरे सिटी में घर मिलना मतलब बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से। तो हमें शांति भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। 1 महीने घर ढूंढने के बाद कल घर फाइनलाइज हुआ है, तो वो भी एक स्ट्रगल है अपने आप में, बट ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, आई विल एंजॉय दैट। स्टोरी तो बननी चाहिए ना, या जितनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, जितनी मतलब फेलियर स्टोरी रहेगी स्ट्रॉन्ग, उतना ही बड़ा सक्सेस होगा, उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, देने में मजा भी तो आना चाहिए। हाँ बहुत मेरी भी स्टोरी बहुत सही है। जब 10 या फिर 50 एपिसोड शूट हो जाएंगे, आई थिंक 50 एपिसोड, तब मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ फेलियर स्टोरीज में। दैट्स माय टारगेट। ओके, सो नेक्स्ट इज who helped you in the journey? So मम्मी और पापा का तो सपोर्ट था ही, but is there someone else who helped you in your journey, like your friends or whatever, teacher, something else? So tell us about that. I would say one thing कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हो या मेहनत से काम कर रहे होते हो ना, आपको लोग बड़े अच्छे मिलते हैं। So in my journey मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे हमेशा किसी न किसी तरीके से हेल्प की है। तो आई वुड से कि जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑफलाइन में तो ऐसा कोई है नहीं, ऑफलाइन में सिर्फ मम्मी पापा ही हैं जो सपोर्ट करते हैं, बट ऑनलाइन फ्रेंड्स है जो ऑनलाइन कम्युनिटीज में से मुझे खुद आके लोगों ने हेल्प की है कि यू कैन डू दिस, कैन डू दैट। वो एक बहुत स्पेशल पार्ट है मेरी जर्नी का कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। मतलब ये नहीं है कि बुरे लोग नहीं मिले, कुछ लोगों ने सीखने की भी कोशिश की है, कुछ लोगों ने गलत डायरेक्शन भी दिया, मैंने वो फॉलो भी कर लिया, और उसके बाद रिजल्ट्स नहीं आए तब मुझे पता चला कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है मेरे साथ, ताकि मैं डायरेक्शन लेस होके मतलब इधर उधर हो जाऊं और मैं एक्सेल ना कर पाऊं उस चीज में। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है, बट इट्स ओके, आई हैव लर्न फ्रॉम देम कि हाँ देखो ऐसे लोगों से यू डोंट हैव टू टेक द एडवाइस। एंड
जो अच्छे लोग मिले हैं वो हमेशा हेल्प करते हैं आपको. इवन द को फाउंडर ऑफ गीता से ज्ञान, वो भी मुझे ऐसे ही मिले थे इंटरनेट पे. ही इनवाइटेड मी फॉर द पॉडकास्ट, और वो एक पॉडकास्ट रन करते हैं, और ही इनवाइटेड मी फॉर द पॉडकास्ट, और मैंने उनसे अपना आइडिया डिस्कस किया, and I found my co-founder. So Wow. there is a lot of magic on the internet कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. Even with the mentor जो मुझे हेल्प करते हैं ऑन द सोशल मीडिया थिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो आप हमेशा मेंटोर ढूंढते हो, बट वन थिंग दैट आई हैव लर्न कि आप मेंटोर नहीं ढूंढते हो, मेंटोर आपको ढूंढता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये मुझे काफी बाद में रियलाइज हुआ था कि ये मेंटोर आपको खुद ढूंढ लेता है जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो. सो आई फाउंड हिम, एंड जितने बड़े अच्छे लोग मिले हैं वो सब मुझे हेल्प करने को रेडी हैं, एंड दे आर जस्ट डूइंग इट. बड़े निस्वार्थ भाव से वो हेल्प करते हैं, एकदम खुशी से, एकदम मतलब खुश होके कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो तो वी विल हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, द को-फाउंडर एज वेल, द मेंटोर एज वेल. सो देयर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल ऑन द इंटरनेट. बस आपको ढूंढने की जरूरत है और अच्छा काम करने की जरूरत है. सुपर. हाउ लकी, कितना मतलब हेट भी मिलता है, प्यार भी मिलता है. इंटरनेट कमाल की चीज है. हेट को किस तरह से संभाला था, मतलब जब मतलब people who were giving you a wrong direction, or so much hate was there, so उस चीज को किस तरह से मैनेज किया था, वो हमारे ऑडियंस को बताओ थोड़ा सा. Basically, hate is like being a social media content creator, especially when it comes to the girl creating a content on social media. There's a lot of things that you have to handle. So if you would see my block list, there are more than 600, 700 boys that I've blocked. So you know what happens on social media when there is a girl content creator. और देखो तुम्हारा content कैसा भी हो, if you are dancing on social media, if you are singing, if you are doing modeling, if you are doing education as well, और इतनी pure चीज as in श्रीमद् भगवद गीता, if I'm conveying the message throughout the world, उसके बाद भी there are some creepy boys who would text you something bad. राइट, तो वो एक हर दिन की कहानी होती है. एंड ये सारी चीजें, इट्स लाइक यू कैन नॉट एवरी टाइम शेयर इट विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स समटाइम्स वेरी आउट ऑफ द स्टेट कि आप सोच भी नहीं सकते दैट दिस हैज हैपेंड. बट द वन थिंग दैट यू कैन डू इज टू इग्नोर, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन क्या कर सकते हैं. जब आप देने जाओगे तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी, एंड दैट कैन बी एन इवन मोर इशू. सो आई हैव ऑलवेज ब्लॉक्ड देम. दैट्स व्हाई देयर इज अ ह्यूज ब्लॉक लिस्ट. So better is to block. और जितना भी criticism भी है, when I post on social media भगवद गीता, तो ऐसा लगता है कि भगवद गीता बड़ी अच्छी चीज है, but there are still some people जिन्होंने, वही होता है ना, लोग उतना ही बोलते हैं जितना वो सोच सकते हैं. हाँ, सही नहीं है वहां तक कि हमें क्या बोलना है. तो they would say कि यार आज के टाइम पे गीता कौन पढ़ता है, लोग चांद पे पहुंच गए एंड तुम गीता पढ़ रहे हो. अब उन्हें पता ही नहीं है, जो लोग चांद पे पहुंचे हैं उन्होंने भी गीता पढ़ी थी. हाँ, वही तो पता ही नहीं है. सुनीता विलियम्स herself has read गीता, तो उन्हें ये चीजें पता ही नहीं है. तो वही वो उतना ही बोलेंगे ना जितना वो सोच सकते हैं. तो जस्ट इग्नोर देम. उनको आंसर करने में कोई मतलब नहीं है. तो जस्ट इग्नोर द हेट. उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, और जब तक इग्नोर नहीं करोगे तब तक हर्ट होता रहेगा. तो बेटर टू इग्नोर. बेस्ट इग्नोर, मतलब उन्हें इग्नोर करना ही सही है. कहाँ एनर्जी वेस्ट करेंगे. वी हैव टू डू ऑल. कहाँ एनर्जी वेस्ट करोगे, कितना लोगों को रिप्लाई दोगे, जितना रिप्लाई दोगे उतने आएंगे वो तो, क्योंकि उन्हें चाहिए मौका बहस करने का आपसे. वो आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाएगी फिर आपसे. तो बेटर नॉट टू वेस्ट योर एनर्जी देयर. वो कहीं और लगा दो एनर्जी. Exactly. That's very good. Okay, next thing is, what inspired when you failed in all the things, when YouTube and all, so what inspired you to bounce back? So what was the one inspiration, or what was that helped you in bouncing back? आई गेस बस एक जिद है कंटेंट क्रिएशन में आगे जाने की. मुझे पता है दैट आई कैन एक्सेल इन दिस फील्ड, तो वो जिद बहुत ज्यादा है मेरी, और उसको कोई तोड़ नहीं सकता. और जब मैंने उस टाइम पे शुरू किया था, इसी जिद से शुरू किया था कि सोशल मीडिया पे कुछ तो भी करना है, और ये तब से मेरे दिमाग में है कि कुछ तो भी सोशल मीडिया पे करना है. और जब मैंने छोड़ दिया था यूट्यूब करना वगैरह सब बंद कर दिया था, उसके बाद भी मेरे दिमाग में था कि थोड़ा सा टाइम और लगा के मैं इसको सीखूंगी, लेकिन इसमें कुछ करूंगी तो जरूर. तो वो 8th क्लास से मेरे दिमाग में है कि मेरे को सोशल मीडिया पे कुछ तो भी करना है, किसी तरह आना है, किसी तरह कुछ तो भी करना है. बट आई हैव बीन अ पर्सन जिसे सोशल मीडिया बड़ा पसंद है. मतलब आई लव टू बी देयर,
एक्टिव देयर और लोगों को देखना, खुद कंटेंट क्रिएट करना। और तभी मैंने इस बीच में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को ऑब्जर्व करती थी, चाहे वो कॉमेडी से हो, चाहे वो डांसिंग से हो, हर एक फील्ड से मैं सबको देखा है एक साथ कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया, कहाँ तक एक्सेल किया है, आज भी वो कितना एक्सेल करते जा रहे हैं। तो वो एक जिद है कंटेंट क्रिएशन में आगे जाना है, और मुझे पता है आई कैन एक्सेल इन दिस फील्ड, तो आई विल डू दैट। लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत देख के हमें पता चलता है कि वी शुड आल्सो, अमिताभ बच्चन भी इस एज में भी इतनी सारी मेहनत करते हैं। अगर केबीसी को होस्ट करना हो, एपिसोड से पहले भी वो 30-30 मिनट अपनी स्क्रिप्ट को रीड करते हैं। तो वो लोग, तो हमें दिखता है ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ कैमरा वो लोग क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। सो वी आल्सो हैव टू look at that hard work and start doing hard work. So there's no other option. Right. So yeah, अब हम लोग देंगे छोटी सी समरी कि what are the 3 main reasons that you failed. So ये हमारी ऑडियंस को बताना है what are that 3 main reasons, so that they will not do that all the things because you failed because of that most important 3 reasons. So they will not fail. So this is the most important thing of our failure stories. ये नहीं करना है, ये 3 चीजें ये नहीं करनी है, तो वो क्या हो सकती है? नंबर 1 is to get out of that comfort zone. तो मैं हमेशा से बड़ी लेजी सी रही हूँ, एंड इट्स लाइक मुझे ना मेहनत करना नहीं पसंद था। मतलब पहले भी स्कूल लाइफ में भी मैंने कभी मेहनत नहीं की थी ज्यादा। मतलब जितना पढ़ लिया ठीक है, हो गया। और ऐसे ही मतलब उस टाइम भी जब मैं कुछ चीजें कर रही थी अगर लाइफ में भी, इफ आई वाज डूइंग यूट्यूब और मे बी ब्लॉगिंग और एनीथिंग एल्स, तो उतनी मेहनत लगा के मैंने की ही नहीं थी कि उसमें मैं इतना एक्सेल करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ मोर इम्प्रूवमेंट, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत जगह थी, तो वहां पे इम्प्रूव मैंने किया नहीं। तो मतलब चल रहा था तो बस चलने दिया। तो ये हम लोग से बहुत सारे लोग करते हैं, तो मतलब ठीक चल रहा है तो चलने देते हैं ना, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें। तो वो अब मुझे रियलाइज होता है कि उस टाइम 100% एफर्ट्स नहीं थे शायद मेरे, इसलिए 100% रिजल्ट्स आए ही नहीं। तो इफ यू वांट दोस 100% रिजल्ट्स, गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन से बाहर आना बड़ी अनकंफर्टेबल चीज है, बट यू हैव टू। तो वो एक चीज है, टू गेट आउट ऑफ दैट। सेकेंड इज लैक ऑफ प्लानिंग। और हम में से बहुत लोग प्लानिंग तो बहुत सारी करते हैं, बट देयर इज अ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। तो लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोथ इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप कोई चीज प्लान कर भी रहे हो तो प्लान इट आउट, बट ऑल्सो इम्प्लीमेंट। जितना प्लान किया उतना इम्प्लीमेंट भी करो। और बहुत ज्यादा प्लानिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है कि ये मतलब एकदम ब्लूप्रिंट लेके चलना है कि ये ऐसा ही होना चाहिए एंड यू विल फाइंड दोस परफेक्शंस कि ये ऐसा नहीं हुआ तो करेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग लैक करते हैं दैट परफेक्ट नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। सो डोंट रन ऑन दैट परफेक्शन, जस्ट प्रोग्रेस। एंड प्रोग्रेस से परफेक्शन आता है, परफेक्शन से प्रोग्रेस नहीं आती है। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये हमेशा, ये मुझे काफी लेट रियलाइज हुआ, और आज भी मैं कुछ चीजों में परफेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, बट देन आई रिमाइंड माई सेल्फ यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट हियर, यू हैव टू प्रोग्रेस हियर। प्रोग्रेस आता जाएगा बाद में, तो पहले करना शुरू करो, आ जाएगी प्रोग्रेस। परफेक्शन सब आ जाएगा। और परफेक्शन जैसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सबका ये मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव है। आपका परफेक्शन आपके लिए हो सकता है, वो मेरे लिए ना हो, या मेरे लिए जो परफेक्ट है वो आपके लिए परफेक्ट ना हो। तो हर किसी की परफेक्ट की डेफिनेशन अलग है। सो काइंडली डू नॉट रन ऑन दैट ट्रैक कि आप परफेक्ट होने की कोशिश करो, राइट। एंड थर्ड थिंग वुड बी, किसी भी स्किल को शुरू करने से पहले, किसी भी बिजनेस में या किसी भी स्टार्टअप में ग्रो करने से पहले उसका पूरा नॉलेज लेना सीखो। बहुत हार्ड स्किल है नॉलेज, और लोग जैसे पूछते भी है लोग कि कौन सी स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड से नॉलेज इज द हार्डेस्ट स्किल यू कैन लर्न, और यही है जो आपकी बाकी स्किल्स को भी कंपेनियन देगी। अगर आप कुछ और भी सीखोगे अपनी लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट भी सीख लो, कम्युनिकेशन भी सीख लो, उसका नॉलेज ही है जो काम आएगा। और कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, स्टार्टअप, पॉडकास्टिंग, हर एक चीज में यू नीड टू टेक दैट नॉलेज। अब अगर तन्मय जी आपको पता ही ना हो कि माइक कैसे चलता है, उसका नॉलेज ही ना हो, तो पॉडकास्टिंग कैसे रन करोगे, राइट। सो दिस इज द नॉलेज यू हैव टू टेक। तो उसकी 200-300 किताबें पढ़ो, कोर्सेस खरीदो, उससे इन्वेस्ट करो, यूट्यूब वीडियोस देखो उसके लिए, जो हो सकता है जहां से सीख सकते हो वहां से सीख लो। 3 इडियट्स में डायलॉग है ना, डायलॉग एक, जहां से ज्ञान मिले बटोर लो। सो सिमिलर विद दैट इन लाइफ एज वेल, कि जहां से जिस चीज का ज्ञान मिले उसको ले लो एंड एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन माय जर्नी। सुपर। तो अब इस फेलियर स्टोरीज को एंड करते हैं हम लोग। अब ओके,
one thing is remaining. What is your favorite quote? We have to let people know what is your favorite quote, and then we'll jump to the quick question quest, and then I'll tell my favorite quote of quote of the day for failure stories, and then we'll end the failure stories. Okay. It's very short one. ये मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया था. That is no pain, no gain. Very common, but it's very deep to understand कि कभी भी लाइफ में अगर पेन नहीं लोगे, किसी भी चीज में स्ट्रगल नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, अपना 100% एफर्ट्स नहीं दोगे, तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो लाइफ में चाह रहे हो. एंड हमें से बहुत सारे लोगों के गोल्स तो है, लेकिन शायद क्लियर गोल नहीं है कि क्या चाहिए लाइफ में. तो अगर आप किसी शॉप पे भी जाओगे तो उसको बोलोगे कि आइसक्रीम दे दो, उसको पता ही नहीं कौन सी आइसक्रीम देनी है, तो आपने उसको बताया नहीं ना कि आपको वनीला खानी थी आइसक्रीम कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी थी. तो वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में भी कि कौन सा गोल अचीव करना है लाइफ में, कहाँ जाना है एग्जैक्टली लाइफ में. तो वो डायरेक्शन जितना क्लियर होगा और जितना पेन अपने जर्नी में आप लोगे, जितने स्ट्रगल्स आप करोगे, तभी आप वहां पे पहुंच सकते हो. तो अगर पेन नहीं होगा तो वो स्टोरी भी नहीं क्रिएट होगी और वो सक्सेस भी नहीं मिलेगी, वो गेन नहीं होगा. सो नो पेन नो गेन इज द अल्टीमेट मोटो. सुपर सुपर. Okay, goal तो होना ही चाहिए. I also have my goal card handy and I keep this always in front of my. Nice. Yeah, so ये goal card है. That's great. इस पे लिखा है ये ब्रूस ली की भी टेक्निक थी. जब उन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए थी तो वो ये हमेशा एक पॉकेट कार्ड ना अपने पॉकेट में रखते थे. वेरी इंपॉर्टेंट. छोटा सा हर बार हमें याद दिलाता है कि हमें क्या करना है. भटकना नहीं है. हमारा ये गोल है. We have to focus on only this goal. So that's why I also kept this card on my desk. Okay, let's move to quick question quest. So let's start. Quick question quest में पहला question है long form content और short form content. Actually both yaar. I love You have to choose one. Short form content for now at least. Okay. Twitter Spaces or Instagram Live? Instagram Live. Video. I still do both. Okay, great. Third one is, do you like to choose one mentor or multiple mentors? Multiple mentors for multiple skills. तो मतलब I believe here कि जिस भी स्किल को आप सीख रहे हो या जो भी नॉलेज आपको चाहिए वो जरूरी नहीं है पूरी एक इंसान में हो, है ना. तो if you would have multiple, मतलब ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे multiple mentors, अलग अलग स्किल और नॉलेजेस के लिए एक मेंटर. इवन मुकेश अंबानी has 12 mentors हर एक चीज के लिए. मेरे पास 4 है. So I also have 4 different mentors for different fields. Okay. Right. Next, fourth one is startup business or coaching business. Very difficult to choose. Coaching business for now at least, because I'm running down. Right. Okay. Late night work or early morning work? Of course, early morning. I'm very sleepy. Okay. Sixth one is for consuming videos or audios? Videos. I'm a visual person. Okay, great. मुझे भी videos ही पसंद है, but sometimes पसंद तो video ही है. Okay. पसंद video ही है, but if you don't have an option, then I'll go with the audio. Exactly. But मुझे से ना देख की चीजें याद हो जाती हैं, तो वो वाला फैक्टर है मेरे साथ. Exactly. Visual learning की आदत है. Seventh one and last one is, for creating videos, would you choose Hindi language or English language? Hindi connects your emotions and it's very important. मतलब हमेशा से हिंदी बोली है, तो ऐसा नहीं है कि I'm Indian तो I would say कि हिंदी मदर लैंग्वेज है. हिंदी ऐसा नहीं है. हिंदी डेफिनेटली आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छा कनेक्ट करती है, which English cannot, क्योंकि आपकी इंग्लिश हमेशा सेकंड लैंग्वेज होती है, स्पेशली इन इंडिया. Most of the Indians have the second option as in English, but Hindi is what connects each and everyone. So Hindi definitely. Super. मैंने भी अभी जितने भी रील्स थे इंग्लिश से अब हिंदी में स्विच करना स्टार्ट कर दिया. दोनों का मैंने सोचा था इंग्लिश में करूं, but then I thought नहीं हिंदी सही है. मैं खुद इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके रील्स स्टार्ट कर रहा हूँ. So yeah, best. Okay, so we'll end this failure stories with a quote of failure. कि the one
who falls and gets up is stronger than one who don't even try. So देखो That's right. ट्राई करो, बहुत सी चीजें हैं, बहुत बार फेल हो जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Everybody fails, every successful person fails, so people And fail it's daily. important. So dare to take, risk, but your risk should be calculated risk. And do not forget Right. the core message of failure stories, that you do not, do not repeat the mistake. Whatever your last Correct. mistake, learn from that mistake and you'll grow faster. So thank you for being Exactly. here, and Thank you so much. goodbye everybody.